Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata So today we'll be starting from Mataji has taken last time till shloka number 24. So we'll start from shloka number 25. So before that we'll pray. हम लोग सब आचार्यों से प्रे करते हैं, प्रभुपाद जी से pray our gurus कि we understand in a better mode, better attitude. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नाना शास्त्र विचारणे कनिपनो षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदार वृंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन वंदे श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च हृदयश्च सर्वं Hare Krishna. So thank you once again all of you for joining today's session. तो just to brief up, जो हमने last time किया था, can we just quickly brief in couple of minutes हमने last week क्या देखा था हम लोगों ने? Can would anybody like to share? I'll share a few points. Yeah, I think specifically 1.24. We are, here introduced to the names of, the other names of Krishna and Arjuna. Krishna is referred to as Rishikesha, that is the master of senses, and Arjuna is referred to as Gudakesh, one who has conquered sleep and also one who has conquered ignorance. Now, I think the other point that we discussed was it is not like Arjuna is weak or that he's not a powerful Yoda. He's actually a very powerful Yoda, but he did develop a weakness of the heart. And why did he develop this weakness of heart? Because Krishna actually created that in him because he wanted to, the world to know Bhagavad Gita, and he uses disciples like Arjuna to actually propagate that message. So I think that was 1.24 where we discussed all this. Yeah, great. That was a nice point. Okay, so we'll continue. I'll just share the shloka. If you want, somebody wants can chant with me. Just share. Okay, if you are able to see, please let me know, then we can start. Yes, probably it's visible. Yeah, thank you. So this is shloka number 25. So I will chant quarter by quarter, and if you can, if you want, you can repeat after me. Sure, I'll do that. Bhishma Drona Pramuktah Bhishma Drona Pramukatah Sarvesham Cha Mahikshitaam Sarvesham Cha Mahikshitam Uvacha Partha Pashyaitam Uvacha Partha Pashyaitan
समवेतान् कुरुनिति. Samavetan kuruneti. So we'll read translation. In the presence of Bhishma, Drona, and all other chieftains of the world, the Lord said, "Just behold, Partha, all the Kurus assembled here." तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉर्ड इज नाउ, व्हेन अर्जुना सेड, अर्जुना ने कहा कि आप लोग आप जो है भगवान से कहा कि आप मेरा रथ दोनों सैन्य के बीच में ले आए मेरा. तो भगवान ने ही ब्रॉट जो हिज रथा वो दोनों सैन्यों के बीच में लेके आए. तो व्हाट हैपेंड हियर इज भगवान ने सीधा द्रोणाचार्य जी और पितामह भीष्म जहाँ पे खड़े थे वहां पे लेके गए वो, और उन्हें कहा वाच पार्थ पश्येतान. उन्हें पार्थ से क्या कहा? समवेतान कुरुनीति. समवेता यानी वो असेंबल्ड, कुरुन यानी जितने भी कुरु हैं, कुरुन इति. तो एक्चुअली यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि लॉर्ड बीइंग ऋषिकेश, ही न्यू उनके मन में क्या चल रहा है, अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, दैट ही इज गेटिंग इमोशनल, ही इज गेटिंग लिटिल बिट है ना अफेक्शनेट टुवर्ड्स इस जो अपने जो सगे संबंधी है उनसे बहुत ये हो रहा है. तो एक्चुअली ही ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब उनको जज करना था कि व्हाट इज द कैपेसिटी, मतलब सामने वाला का जो सैन्य बल कितना है, मेरा कितना है, वेदर दैट ही हैज ऑलरेडी डन. बट अभी जो वो दोनों सेनाओं के बीच में अभी खड़ा करने के लिए कह रहे हैं, बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू सी द ब्रूटैलिटी ऑफ द वॉर. वहाँ कितना घातक है ये, और कौन कौन लोग हैं यहाँ पे. जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट वाज नॉट दैट ही हैज नॉट फॉट बिफोर दैट ऑल्सो सिंगल हैंडेडली. उन्होंने विराट का जो युद्ध हुआ था, तो विराट के युद्ध में अकेले अर्जुन, इवन ही वाज इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मनल्ला, दैट यूनक. तो वो जब उस ट्रांसजेंडर के रूप में रह रहे थे अकेले, जो उन्होंने उस पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, जितने भी थे बड़े बड़े योद्धा, सबको अकेले सिंगल हैंड में. बट दैट टाइम इट वाज, मैं बोला ना, जैसे इट वाज नॉट अ ब्रूटल वॉर, किसी को मारना नहीं था, देयर वाज नो किलिंग, जस्ट डिफीटेड देम एंड और उनको छोड़ दिया था. बट नाउ he knew this war is suicidal, मतलब या तो either I am going to live or they are going to live, so one of them is going to die. तो he just wanted to see कि ये कितना जो है, मतलब कौन कौन लोग इसमें आए हैं, कौन कौन लोग इसमें who are ready to suicide and ready to give up their life. He wanted to see that. तो भगवान कृष्ण जो थे वो जानते थे कि he is little getting affectionate, और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि दोनों सेनाओं के बीच में लेके आए. एंड भगवान को भगवत गीता, मतलब एक्चुअली भगवान की प्रेरणा से ही अर्जुन जो था वो थोड़ा सा कंपैशनेट हो रहा था, क्योंकि अगर भगवान चाहते तो सीधा वो दुर्योधन के सामने रथ लेके खड़ा कर देते, या तो कर्ण के सामने, बोले यही वो नालायक है जिसके वजह से द्रौपदी का अपमान हुआ, हमको इतना दुख सहना पड़ा. इमीडिएटली वो तीर निकाल के बोलता था चलो लेट्स फाइट. लेकिन भगवान इज सो स्मार्ट, जानबूझ के उन्होंने द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के सामने खड़ा किया अपना जो रथ था. तो दैट जो इंसाइटेड अफेक्शन वो जो था, उसके वजह से उनके मन में जो करुणा था वो जागृत हो गया. और भगवान को मतलब यही चाहते थे, क्योंकि भगवान भगवत गीता का जो उपदेश हम लोग जैसे जो कलयुग में आज है, वी आर रिसाइटिंग दिस श्लोका, वी आर मतलब समझने की तो बात है, कुछ लोग तो सिर्फ रिसाइट करते हैं उसको. हम लोग अगर थोड़ा डिटेल में बाद में जब जाएंगे तो विल सी कि जो सिर्फ भगवत गीता को रिसाइट भी करता है, सिर्फ उसका उच्चारण भी करता है, तो उसको बहुत बेनिफिट मिलता है, ही गेट्स लॉट ऑफ पुण्यास. तो वो भगवत गीता भगवान कृष्ण हम लोग को देना चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने ये सब कार्य किया. और भगवान उसी की वजह से ये यहाँ पे वो लेके आए हैं. तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेज इन पर्पट. और फिर वो पार्थ के नाम से भी पुकारते हैं. इसी उवाच पार्थ है, पार्थ से कहा, तो पार्थ को ही इज कनेक्टिंग कि तुम मेरे आंटी जो मेरी बुआ हैं प्रथा,
यानी कुंती महारानी उसके पुत्र हो, तो यू आर इन दैट रिलेशन, और इसीलिए मैंने तुम्हारा जो रथ हाँकने का काम जो है उन्होंने तुम्हारा लिया है। एंड वी हैव सीन दैट कि जो रथ चलाना किसी का इतना सामान्य कार्य नहीं है। अगर किसी का ड्राइवर बनना है आज के तारीख में, तो ड्राइवर इज स्टिल, इट्स नॉट दैट मिनियल जॉब। लेकिन किसी का रथ चलाना इट वाज वेरी वेरी मिनियल थिंग, बिकॉज हमने देखा कि पाँव से कैसे उनको बताना पड़ता है। तो ये भगवान जो थे वो उसको याद दिला रहे थे। और यहाँ पे हम अगर देखें, भगवान कृष्ण भीष्म और द्रोण का नाम ले रहे हैं यहाँ पे, पितामह भीष्म और द्रोण जी का। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मेन ऐसे योद्धा थे जो इतने पावरफुल थे। अगर हम लोग भगवत गीता देखें, हम लोग जो ये जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ, ये 18 दिन चला, ये फॉर 18 डेज। एंड इन 18 दिनों में पितामह भीष्म वॉज कमांडर फॉर 10 डेज। 18 में से 10 दिन तक पितामह भीष्म थे, एंड 10th डे ही फॉल, उनका मतलब जो था वो डिफीट हो गए थे। फिर अगले 5 दिन जो थे द्रोणाचार्य जी थे, और 2 दिन कर्ण था, एंड 1 दिन इट वाज शैल्य, लास्ट डे पे शैल्य थे। तो इफ यू सी द मेजर जो चंक था, जो मेजर जो हैंडल किया था, दैट वाज पितामह भीष्म एंड द्रोणाचार्य। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये 2 ऐसे महायोद्धा हैं और ये प्रमुख हैं, देखो तुमको इनके साथ युद्ध करना है तुम्हें। भीष्म द्रोण प्रमुखतः। और एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि पश्चेतान समवेतान कुरुनीति, मतलब एक तरह से भगवान उनको चिढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अर्जुन को कि कुरुन, मतलब इस तरफ भी कुरु हैं और इस तरफ भी कुरु, दोनों ही कौरवों के कौरव हैं एक तरह से। तो लॉर्ड अर्जुन को ये भी मतलब एक तरह से चिढ़ा रहे हैं कि दोनों तरफ कुरु ही हैं, तो दोनों को तुम देखो, तुम दे आर बोथ आर कुरुस। और यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो इस श्लोक में नॉर्मली जहाँ पे भी भगवान का ये आता है, भगवान का डायलॉग आता है, जहाँ पे भगवान का संवाद आता है, तो वहाँ पे श्री भगवान उवाच आता है पहले। तो हमारे एक बहुत अच्छे आचार्य, एक वैष्णव हैं चैतन्य चरण प्रभु, वो हाईलाइट करते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे भगवान उवाच नहीं कहा गया है, वहाँ पे सीधा जो है उनका मतलब उनका डायलॉग आता है, पश्चेतान समवेतान कुरुनीति। क्यों है ऐसा? क्योंकि अभी तक कुछ भगवत गीता का फिलोसॉफिकल डिस्कशन शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे। स्टिल भगवत गीता जो मेन कंटेंट है, या यहाँ पे जो मेन भगवान जो फिलोसफी देना चाह रहे हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है वो। तो जैसे मतलब उदाहरण भी देते हैं, जैसे अगर समझो कोई बड़ा इशू है और किसी कंपनी के बड़े पोजीशन, चाहे सीईओ या किसी को, उसको जब बुलाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो बिफोर कमिंग ही गिव्स लॉट ऑफ डायलॉग्स, हाय हाउ आर यू, कैसे हो, एंड जनरल डिस्कशंस होता है। तो उसको कोई कोट नहीं करता, अरे इन्होंने ये कहा था, बट एक्चुअल जब वो बैठते हैं, मीटिंग स्टार्ट होता है, एंड देन द प्रॉब्लम इज ब्रॉट अप, तब वो जब बोलना शुरू करते हैं, दैट इज बीइंग कोटेड। तो वैसे ही जो है ये एक जनरल एक एक फ्रेज है भगवान का कि समवेतान कुरुनीति। तो हम लोग देखेंगे भगवत गीता में, हम लोग जब आगे जाएंगे 2nd चैप्टर के 11वें अध्याय से भगवान जो है फिलोसफी शुरू करते हैं, तब वहां से फिर श्री भगवान वाच, मतलब वहां पे सबका अटेंशन कि हाँ भगवान कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, तो वहां से हमारा अटेंशन। तो यहाँ पे इसीलिए वो जो हमारे वैष्णव बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे श्री भगवान वाच ये कोट नहीं किया गया है यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट है इस श्लोका में। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो या ओके, तो दिस आर द पॉइंट्स फ्रॉम श्लोका नंबर 25। हम लोग नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। किसी का अगर कोई डाउट या कोई कमेंट है तो विल कीप लास्ट 10 minutes 15 minutes फॉर दैट, एंड यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट श्लोका लेते हैं हम लोग।
हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी टू इंटरप्ट, कैन यू रिपीट No, द no problem. लास्ट लाइन, मैंने वो मिस किया। आप कह रहे थे श्री भगवान उवाच के बारे में, आप क्या कह रहे थे, क्यों बताया हाँ, गया है? ओके। तो हमारे एक वैष्णव हैं चैतन्य चरण प्रभु, उन्होंने बहुत अच्छा हाईलाइट किया है कि अगर भगवत गीता हम लोग देखें तो सब जगह पे जब भी भगवान बोलते हैं तो श्री भगवान उवाच पहले मतलब हाईलाइट किया जाता है कि अभी भगवान बोलने वाले हैं, श्री भगवान उवाच, और फिर उनका जो भी संदेश है वो आता है। बट यहाँ पे हम लोग देखें इस श्लोक में, श्लोक का नंबर 25 में भगवान बोल रहे हैं समवेतान कुरुनीति, तो यहाँ पे श्री भगवान उवाच नहीं यूज किया गया क्योंकि इट्स जनरल जस्ट फ्रेज। और फिर वो जो एग्जांपल दिया मैंने कि सम बिग पर्सनालिटी कम्स किसी भी चीज के लिए, तो उसका मतलब मीटिंग स्टार्ट होने के पहले ही डज लॉट ऑफ जनरल डिस्कशंस, तो उसको कोई इतना ध्यान नहीं देता, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो जो मीटिंग में जो होने वाला है डिस्कशन दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वैसे ही यहाँ पे भगवत गीता में जो भगवान फिलोसफी देने वाले हैं सेकेंड चैप्टर के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 11 से, वहां से शुरू होता है, इसके लिए वहां पे हर बार श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच आता है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू माता, हरे कृष्णा। तो हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक का नंबर 26 मैं शेयर करता हूँ। तत्र पश्यत्सि तान् पार्थः तस्य पश्चात्स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सौरदश्चैव श्वशुरान् सौहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। सेनयोरुभयोरपि। ट्रांसलेशन देखते हैं। There Arjuna could see within the midst of armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends and also his father-in-laws and well-wishers। तो यहाँ पे अर्जुन ने जब कहा मेरे रथ बीच में लेके आओ, और जब भगवान कृष्ण ने कहा देखो, तो जब उसने देखा अर्जुन ने, तो he could see अर्जुन उसने देखा कि कौन कौन है वहाँ पे। तो वहाँ पे आचार्यान, मातुलान, भ्रातृन, यानी उनके सभी जो थे रिलेटिव ही थे। मतलब यहाँ पे जो इतनी 18 अक्षौहिणी सेना थी, तो एवरीबडी वाज रिलेटेड टू समबडी इन समहाउ अदर। कोई किसी का भाई है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई दोस्त है, तो समहाउ समवेयर दे वर कनेक्टेड। तो जब अर्जुन ने जब देखा तो वहाँ पे हर कोई जो था वहाँ पे उनका रिलेटिव या फ्रेंड या ससुर या ग्रैंडफादर, कोई ना कोई ऐसा था, उसमें रिलेटेड ही था वहाँ पे। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर कोई जो था वहाँ पे उनका अपना रिलेटिव ही था वहाँ पे। तो जैसे हमने पहले के जब नाम देखे हम लोगों ने सैन्य निरीक्षण योग जो इसको कहते हैं, तो जब सैन्य निरीक्षण करते हैं उसमें बहुत सारे उन्होंने योद्धाओं के नाम है, तो उसमें एक नाम आता है भूरिश्रव का। तो भूरिश्रव वाज लाइक हिज फादर अर्जुना के पिता के समान थे, क्योंकि पांडु तो नहीं थे, उनके पिता जो नहीं थे, और धृतराष्ट्र वाज आल्सो लाइक फादर बट ही वाज नॉट ऑन द बैटलफील्ड, वहाँ पे नहीं थे। लेकिन भूरिश्रव जो थे, भूरिश्रव वो उनके पिता के आयु के थे, और उनके पिता जो थे सोमदत्ता, तो उनका भी नाम देखा था हम लोगों ने, सोमदत्ती ततश्चैव। तो सोमदत्त जो थे वो भूरिश्रव के पिता थे। तो
हम लोग देख सकते हैं अर्जुन के हिसाब से अगर देखें तो उनके दादाजी के समान हो गए सोमदत्ता। एंड सोमदत्ता के फादर बहालिक जो उनके ग्रैंडफादर के पिता, तो यू कैन जस्ट इमेजिन, मतलब अर्जुन के प्रीवियस 3 जनरेशंस, उनके पिता, उनके ग्रैंडफादर और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर सभी वहां पे युद्ध के लिए उपस्थित। ऐसा नहीं था कि मतलब एक्चुअली उस टाइम का जो समय था, दे वर ऑल वेरी स्ट्रांग, और बेसिकली दे वर क्षत्रिय, दे आर सपोज टू बी स्ट्रांग। तो हम लोग देखते हैं क्षत्रिय में इतना मतलब बल होता है, और कई बार हम लोग देखते भी, आई थिंक मूवीज में देखा है, उनका सर भी कट गया, दे स्टिल कीप फाइटिंग। और महाराष्ट्र में भी हम लोग देखते हैं शिवाजी के समय में जो बाजी प्रभु थे, तो उनको कई मतलब उनको लगा था, उनको कई बार लगा, बट इट वाज सो मच फेरोशियस, मतलब इतना उनमें ये था कि ही केप्ट ऑन फाइटिंग इवन आफ्टर बीइंग मतलब शॉट, इवन आफ्टर बीइंग हर्ट बाय सो मेनी टाइम्स। लेकिन उनके शरीर, मतलब क्षत्रियज आर बिल्ट लाइक दैट, उनको ऐसा बनाया जाता है कि दे हैव, उनका काम ही वही है फाइट करना। और फाइट करना था मतलब ऐसे नहीं जस्ट दे हैड टू फाइट फॉर अ कॉज, धर्म के लिए वो फाइट करते थे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ रह नहीं गया है। तो इवन दो फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, दे वर सो ओल्ड। अगर पितामह भीष्म भी देखें तो ऑलमोस्ट हिज एज वाज, कहते हैं अराउंड इट वाज समथिंग 400 years, सो ही वाज सो ओल्ड, बट स्टिल ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ओवर देयर। और वैसे ही बहालिक थे, तो जो बहालिक थे वो शांतनु महाराज के बड़े भाई थे वो। तो शांतनु महाराज जो थे, एक्चुअली बहालिक जो थे वो ही वाज बिजी इन स्प्रेडिंग द किंगडम, मतलब वो जो थे यहाँ पे जाना वहाँ पे जाना, युद्ध करना, उसको अपने अंडर में लेना। तो ही वाज वेरी बिजी डूइंग एक्सपांडिंग द किंगडम, तो उनको टाइम नहीं मिला कि वो वहाँ पे बैठे राज्य करे, सब संभाले उसको। तो व्हाट ही डिड, ही इंटरेस्टेड, जो उनके छोटे भाई थे शांतनु को कहा कि आप राज्य संभालो, मैं यहाँ पे। एंड यू कैन सी द इंटीमेसी कि इतना बड़ा राज्य है, एंड दे वर सो मच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है चलो तुम मेरा राज्य, आज के अगर जमाने में किसी को बोले तुम मेरा छोटा सा प्रॉपर्टी संभाल, में जरा कहीं जाके आता हूँ, तो आई थिंक दैट इज अनइमेजिनेबल। बट इफ यू सी दैट टाइम, दैट सो मच फेथ, सो मच इंटीमेसी कि वो कहते हैं कि तुम राज्य संभालो, मैं जाके ये काम करता हूँ करके। एंड ही वाज डूइंग दैट। एंड बहालिक जो थे वो प्रतिपा मुनि के वो पुत्र थे। प्रतिपा मुनि के 2 पुत्र थे। एक्चुअली आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर वेदर आई हैव, मतलब मैंने इसको यहाँ पे बताया था, बट प्रतिपा मुनि वाज वंस सिटिंग एंड ही वाज डूइंग तपस्या। तो वहाँ पे जो गंगा थी, वो गंगा आके उनके राइट थाई पे बैठ, आई थिंक इट वाज, या राइट थाई पे बैठ गई, और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो प्रतिपा मुनि तो बोला कि मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है तुमसे, मैं यहाँ पे तपस्या के लिए आया हूँ, एंड एनीवे यू हैव केम एंड सेट ऑन माय राइट थाई। तो एक्चुअली दैट इज द पोजीशन फॉर आइदर डॉटर और माय डॉटर इन लॉ। बोलते हैं कि इवन शास्त्र में कहते हैं कि लेफ्ट जो है दैट इज फॉर, लेफ्ट थाई इज फॉर वाइफ, एंड राइट इज फॉर डॉटर एंड डॉटर इन लॉ। तो बोले तुम मेरे राइट थाई पे आके बैठी हो, तो यू हैव लाइक माय डॉटर, सो आई कैन नॉट मैरी यू, सॉरी फॉर दैट, बट माय सन ही विल मैरी यू। एंड देन वी सी कि शांतनु से उनका विवाह हो जाता। तो उनके पुत्र थे बहालिक, एंड बहालिक वाज आल्सो वेरी ओल्ड, ही वाज लाइक ए ग्रेट ग्रैंडफादर। तो वो वहाँ पे उपस्थित थे, सोमदत्त थे और भूरिश्रव थे। तो उनके 3 पीढ़ी पहले जो थे वहाँ पे युद्ध करने के लिए उपस्थित थे। एंड उनके जो थे पुत्र, यानी जो दुर्योधन का जो पुत्र था लक्ष्मण, ही वाज देयर, और अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, ही वाज देयर। सो पुत्र के थे, एंड पौत्रान यानी जो ग्रेट ग्रैंडसन, तो जैसे लक्ष्मण का जो पुत्र था वो भी वहाँ पे युद्ध करने के लिए था वहाँ पे। सो दिस इज ऑल, यू कैन से 3 generations above and 3 generations below, they were there to fight with each other.
तो ये यहाँ पे उसने सब देखा, यहाँ पे मतलब सब मेरे आचार्य, आचार्य रिफर्स टू कृतवर्मा यहाँ पे, और द्रोणाचार्य, तो देवर हिज टीचर्स, वो वहाँ पे थे। फिर मातुलान, मातुलान में फिर से मातुलान इज मामा, मामा इज शकुनी, एंड ऑल्सो शैल्य, शैल्य वॉज ब्रदर ऑफ माद्री। तो जो पांडु के दो वाइफ्स थे, कुंती एंड माद्री, तो माद्री के भाई थे शैल्य, तो ही वो थे, उनके मामा थे, तो ही वॉज देयर। एंड भातरन, भातरन मीन्स दुर्योधना एंड ऑल हिज 100 ब्रदर्स, वो जो थे सारे उनके भाई ही थे। तो सारे जो था उनका फैमिली ही था, सकीम्स, अश्वत्थामा, सकीम्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहा जाता है कि एग्जैक्टली नॉट हैज फ्रेंड बट कंटेम्पररी, या उनके साथ में पढ़ने वाले, तो अश्वत्थामा वाज लाइक दैट। एंड यहाँ पे जो सुहृदान कहा गया है, सुहृदान यहाँ पे रिफर्स टू कृतवर्मा। तो कृतवर्मा जो थे वो बहुत ही अच्छे वेल विशर थे, उनके मतलब he was most affectionate towards पांडवास, लेकिन he was commander for the यादव आर्मी। और भगवान ने जब वो आर्मी जब दुर्योधन को दे दिया, तो he was forced to fight on that side। so कृतवर्मा जो थे वो सुहृद थे, and it was whole of a, like can say a familial war था वहाँ पे, मतलब एक परिवार के बीच में ही युद्ध था। तो ये हम लोग को इस श्लोक में हम लोग को दिखता है हम लोगों को, ठीक है। तो विल मूव टू नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट श्लोका हम लोग लेते हैं, श्लोका नंबर 27 में शेयर करता हूँ। तान् समीक्षस्य कौन्तेय, तान् समीक्षस्य कौन्तेय, सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान्, सर्वान् सर्वान् बन्धुस्थितान् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो, कृपया पर्यावस्तो विषेदन् इदम् अब्रवीत्। विषीदन् इदम् अब्रवीत्। तो ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग इसका। When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus। तो जब अर्जुन ने जब देखा कि सब उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, सब यही लोग वहाँ पे उपस्थित हैं युद्ध करने के लिए, तो इससे वो जो है थोड़ा सा प्रभावित हो गया। he became एकदम कंपैशनेट, उसके मन में दया आ गई कि बोले कि इनको मुझे मारना है। तो दिस इज वेरी सैड थिंग। एंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कृपया पर्याविष्टो, यानी कंपैशन से उनका मन भर गया उनका, और ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या कहा वो विल सी नेक्स्ट श्लोक का। तो इस श्लोक में जैसे जो चैतन्य चरण प्रभु हैं, हमारे जो वैष्णव हैं, वो बोलते हैं कि to see anything with intelligence is very good, बट जब उसको with intelligence यानी जब बुद्धि लगा के नहीं देखा जाता, तो then it becomes a problematic। एंड यहाँ पे यही हो रहा है। तो जैसे वो कोट करते हैं कि जैसे श्लोका नंबर 23 में अर्जुन कहते हैं धृतराष्ट्र दुर्बुद्धे, तो देयर ही वाज वेरी क्लियर कि दिस इज अ वॉर बिटवीन गुड एंड इवल, यहाँ पे अच्छे और बुरे के बीच में यहाँ पे ये युद्ध होना है। सो दैट टाइम हिज इंटेलिजेंस वाज वर्किंग। लेकिन जब उसने देखा, अपने पितामह को देखा, अपने गुरु को देखा, तो उसका मन जो है अफेक्शन से भर गया। एंड देयर ही वाज नॉट थिंकिंग फ्रॉम इंटेलिजेंस, एंड दैट्स व्हाई वो क्या हो गया, कृपया पर्याविष्टो। ने एक्चुअली आचार्य कहते हैं कि दो कृपा है एक वर्ड, कृपा यानी मर्सी, लेकिन यहाँ पे जो कृपया कहा गया है दैट इज कंपैशन, यानी कृपया किसी को कृपा
करवाने पर मजबूर करती है। तो दैट वो कृपया जो है कंपैशन, उससे वो भर गया और फिर क्या हो गया, विषिदन, मतलब वो विषाद करने लगे। तो अगर हम लोग देखें तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इस चैप्टर के दो नाम हैं, एक सैन्य निरीक्षण योग है और दूसरा अर्जुन विषाद योग है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो देखा सैन्य निरीक्षण, इसीलिए इसको सैन्य निरीक्षण, और यहाँ से इट इज चेंजिंग टू द लैमेंटेशन ऑफ अर्जुना। अर्जुन का जो विषाद है वो यहाँ से शुरू होने है। तो यहाँ से जो है अर्जुन का विषाद शुरू होता है, विच इज आइडेंटिफाइड विषिदन, यानी जो विषाद कर रहा है। इसके लिए ये दो इस चैप्टर के नाम है यहाँ पे। तो जब दुर्योधन ने जब सैन्य निरीक्षण किया तो उसको वहाँ पे कोई बंधु दिखाई नहीं दिए। वहाँ पे ये वो जस्ट है कि यहाँ पे अर्जुन है, यहाँ पे भीम है, एंड उसके मन में इतना भीम के प्रति इतना द्वेष था कि हर किसी को वो मतलब भीम की तरह ही वो कंपेयर कर रहा था कि ये भीम की तरह शक्तिशाली है या भीम के निरीक्षण में है, जबकि धृष्टद्युम्न जो था वो उनका सेनापति था, लेकिन ही वाज कंसिडरिंग हिम। तो उसने कभी बंधु ऐसे देखा नहीं, उसके मन में वो कृपा नहीं जागा, बिकॉज ही इज असुरी कैरेक्टर। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो अच्छे भक्त होते ऑटोमेटिकली उनके मन में जो है कृपा जागती है, या ऑटोमेटिकली ही हैज ऑल द गुणास ऑफ अ नाइस पर्सन, ए नाइस डिवोटी। और तो यहाँ पे अर्जुन ने सबको बंधु के हिसाब से देखा, लेकिन दुर्योधन ने कभी उनको रिलेशन में नहीं देखा उन्होंने। एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी कि ऐसे जो कपटी या असुरी व्यक्ति के लोग हैं, उनके मन में सिर्फ पावर या वेल्थ हाथी आने का उनका पर्पस होता है, एंड दे फॉरगिव दिस, दे सैक्रिफाइस देयर ओन फैमिली मेंबर्स। और हम लोग देखें कि ये इवन औरंगजेब जो था, ये अपने अपने पिताजी को जेल में डाल के उसने पूरा सारा राज्य ले लिया था। तो ऐसे कैरेक्टर के व्यक्ति जो हैं, दे नेवर सी रिलेशंस, दे नेवर वैल्यू रिलेशंस। सो एंड अर्जुन वाज नॉट लाइक दैट। अर्जुन जो था उसका मन में जो था कृपा था, वो ये सोच रहा था, हम लोग आगे देखेंगे कि वो बोलता है कि मुझे इतना बड़ा राज्य नहीं चाहिए, आई वांट देम टू लिव, मैं उनको नहीं मार सकता। तो दिस इज व्हाट अ गुड क्वालिटी ऑफ ए वैष्णवा, अ गुड क्वालिटी ऑफ ए नाइस पर्सन। तो ये इस श्लोक में हमको देखने मिलता है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आचार्य लोग कहते हैं कि अर्जुन जो है वो युद्ध के 5 कारण देता है। अभी यहाँ से जो है नेक्स्ट श्लोका से शुरू होगा, मतलब ये वो है कि कंपैशन, एक तो है कृपा यानी दया दूसरों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, नॉट ओनली अपने संबंधी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने तरफ के जो सैनिक से उनका कोई इतना रिलेशन नहीं था, बट स्टिल ही वाज कंपैशनेट नॉट ओनली फॉर हिज ओन मिलिट्री पीपल बट आल्सो जो सैनिक जो दूसरे तरफ थे दुर्योधन के, और बोलते हैं कि हमारे युद्ध की वजह से बेचारे ये लोग मारे जाएंगे। तो उनके प्रति भी उनका कंपैशन था, जो वो रीजन एक एक देते जाएंगे तो वो हम लोग देखेंगे उसको। तो एक रीजन है कंपैशन, वी हैव टू कीप इन माइंड दिस 5 थिंग्स, 5 रीजंस। व्हाट आर दैट? दे आर कंपैशन, एक कंपैशन था। फिर नेक्स्ट है लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, मतलब वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपना जो राज्य है वो नहीं एंजॉय कर पाएंगे। तीसरा रीजन देते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, मेरे सारे जो फैमिली है वो खत्म हो जाएगा, फैमिली ट्रेडिशंस खत्म हो जाएगा। फिर चौथा रीजन देते हैं सिंफुल रिएक्शंस, मतलब अगर मैं ये ऐसा काम करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, विच आई डोंट वांट। मैं यहाँ पे कुछ साल तक राज करूँगा, लेकिन नरक में मैं हजारों साल तक रहूँगा, दिस इज व्हाट आई डोंट वांट। तो फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। एंड पांचवा वो देते हैं इनडिसीजन, कि आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग, वेदर आई शुड फाइट और आई शुड नॉट फाइट। तो ये 5 रीजन अर्जुन देते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट श्लोका से जो है उनका 5 जो रीजन है, जो फर्स्ट रीजन है वो हम लोग देखना शुरू करेंगे हम लोग।
फ्रॉम श्लोका नंबर 28 to 30 वो पहला रीजन देते हैं कंपैशन. फ्रॉम 31 to 35 he gives another reason, that is loss of enjoyment. फिर 36 to 38 सिंफुल रिएक्शंस जो मिलने वाले हैं क्या क्या हैं वो हम लोग देखेंगे. फिर 37 to 43 डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, कैसे हमारा फैमिली का जो ट्रेडिशंस है, जो कल्चर, वो कैसे खत्म हो जाएगा वो देखेंगे. एंड 2.6 में इंडिसीजन हम लोग देखेंगे. तो वी विल सी दिस 5 रीजंस ऑफ अर्जुना व्हाई ही डजंट वांट टू फाइट. तो आई विल स्टॉप हियर ऑन श्लोका नंबर 27 and we'll take any questions or any comments, any doubts if somebody has. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, what you said? Third one? Compassion, loss of enjoyment and? Fear of sinful reactions. Okay. मुझे पाप लगेगा. Can you repeat those with chapter text numbers 28 to which 28 to 30 is 30 is compassion. Second, loss of enjoyment, 31 to 35. Okay. Then 36 to 38, fear of sinful reactions, मुझे पाप लगेगा. फिर 37 to 43, destruction of family tradition, मेरे कैसे हमारा जो कल्चर है, हमारा फैमिली वैल्यूज है वो नष्ट हो जाएगा. देन इनडिसीजन इन 2.6 he concludes, I don't know whether it is right or whether it is wrong, I should fight or I should not fight, I am not able to decide. तो ये 5 रीजन है. तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड. आई थिंक वी शुड थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रेक करके स्टडी करें. एंड ऑल्सो विल ट्राई टू कीप दिस इन, मतलब हम लोग अच्छे से स्क्रूटिनाइजिंगली इसको स्टडी करेंगे तो इट विल हेल्प अस. एंड ऑल्सो आई वाज थिंकिंग टू इंट्रोड्यूस, हम लोग अभी तक जो किया है थोड़ा सा, विल ट्राई टू हैव सम स्मॉल क्विज व्हाटएवर वी हैव गॉन थ्रू, जो हमने अभी तक पढ़ा है या सुना है, how much we have understood. So this quiz is like a fun part, एक गेम की तरह है. And you have to keep clicking on the options. It's like MCQs, multi-choice questions. So you select on the right one. It's a lot of fun. And also we'll able to understand, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं normally जब दूसरे classes में करता हूँ तो they think they have understood, but जब questions जब आता है and I make it little tricky, थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो then we are able to judge कि whether I have understood properly or not. So and that last phase हम लोग अगर नहीं भी समझे हैं तो that point stuck to our mind through that quiz. प्रभु जी 24 टेक्स्ट में लास्ट पैराग्राफ में जो लिखा है ना, आप थोड़ा उसको एलोबरेट करेंगे. ही सेज, what did Krishna mean when he told Arjuna to behold the Kurus? Did Arjuna want to stop there and not fight? Krishna never expected such thing from the son of his aunt, Pratha. ये Krishna never expected such thing from the son of his aunt Pratha. What does this line signify? मतलब this is shloka number 24 25 मैं एक लास्ट लाइन है उसमें, वो परपट अपट शेयर करता हूँ. श्लोका नंबर 25 लास्ट. ओके, तो यहाँ पे ये कहा गया, नाउ व्हाट डिड कृष्णा मीन व्हेन he told Arjuna to behold the Kurus. तो यहाँ पे जब भगवान कृष्ण उनको देखने के लिए बोल रहे हैं कि behold, तो what was his intention? What was he thinking? Like actually he knew already, जैसे हमने देखा ना कि Lord is Rishikesh, and he was knowing what was going in the back of mind of Arjuna. Arjuna is getting compassionate, जैसे मैंने बोला कि he is not going in between to judge the capacity of the enemy. वो already उन्होंने कर लिया था, लेकिन अब he was getting into the brutality of the war. कितना घातक होगा ये war.
and that's why he was having a feeling कि ये अभी कुछ ऐसा काम करने वाला है, and that's why he was saying कि देखो, and in a way he was teasing also कि यहाँ पे भी कुरु है, यहाँ पे भी कुरु है, both sides they are kurus. And what he was saying, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुना being a क्षत्रिय and being a Vaishnava, it was his duty to fight, and Krishna was not expecting him to think in such a way कि that I don't want to fight. So he was teasing him in a joking way कि देखो दोनों तरफ ही कुरु हैं ये, पश्चेतान समवेतान कुरुन इति. Okay, I hope you understood. got the Yeah, point. yeah, understood. Yes. Yeah. Thank you, Ashish ji. Yeah. Hare Krishna. Any other doubts or questions? Any comments? So मतलब कृष्णा ने उसको अर्जुना को जानबूझ के बीच मैदान में लाके खड़ा कर दिया, you know, where he was able to see both the sides, and that's where his mind actually got confused. Is it like that कि वो कृष्णा ने जानबूझ के वो उसका रथ बीच मैदान में खड़ा करके भाई देख तू इस साइड भी देख इस साइड भी देख, can it be interpreted that way? Yeah, and that's the exact meaning. Actually, जैसे हमने देखा कि आचार्य लोग, हमारे वैष्णव आचार्य बोलते हैं, चाहते भगवान कृष्ण तो वो दुर्योधन के सामने खड़ा करते थे, तो तुरंत उसका दिमाग खराब हो जाता कि यही वो नालायक है, या तो कर्ण के सामने है, या जो दूसरे कौरव थे उनके सामने. तो इमीडिएटली इंसल्टेड हिज एंगर, इनकी वजह से द्रौपदी का इंसल्ट हुआ, इनकी वजह से हमें दुख झेलना पड़ा, इसकी वजह से भीम को ये लोगों ने मारने का प्रयास किया. बट भगवान वाज स्मार्ट, ही वेंट इन फ्रंट ऑफ भीष्म एंड द्रोणा, उनके सामने लगे खड़ा किया, अब तू सोच क्या कर रहा है. सो भगवान जो है यहाँ पे इन मीडियम ऑफ अर्जुना के माध्यम से क्या सही फिलोसफी है, व्हाट इज द राइट एटीट्यूड, हम लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि फैमिली अफेक्शन एक चीज है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो यू हैव टू टेक वन साइड. यू कैन नॉट बी नहीं ये भी अच्छे हैं ये भी अच्छे हैं, नहीं. व्हेन इट कम्स टू धर्मा एंड व्हाटएवर, हम लोग देखेंगे आगे कि भगवान जो कह रहे हैं दैट इज टू बी डन. वी कैन नॉट थिंक नहीं ये तो मेरा भाई है, मैं इससे कैसे लड़ाई करूं, या ये मेरे दादाजी हैं मैं इनसे किससे लड़ाई करूं, या ये मेरे गुरु हैं इनसे मैं सीखा हूँ शस्त्र चलाना, इनके ऊपर मैं कैसे शस्त्र चला. तो यहाँ पे भगवान थ्रू भगवत गीता यहाँ पे हम लोग को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू धर्म, जब धर्म की बात आती है तो वी हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस. हरे कृष्ण. मीन्स जब सच के बारे में अगर लड़ना है तो वी शुड फॉरगेट एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड अस. इज इट लाइक दैट? I would like to correct you, not such, but Okay. it is dharma, because अगर हम देखें कृष्ण ने जो भी काम, भगवान कृष्ण ने जो भी काम किया है वो टेढ़ा काम किया है. जब द्रोणाचार्य जी को मारना था तो युधिष्ठिर महाराज जो कभी झूठ नहीं बोलते उनसे झूठ बुलवाया, एंड वो झूठ बोल नहीं पाया, इसके लिए उसको कुछ सेकंड्स के लिए युधिष्ठिर महाराज को नरक देखना पड़ा था. सो इट इज नॉट द पॉइंट, सत्य की बात नहीं, पॉइंट इज धर्म. धर्म तो के धर्म जो और सच में मतलब डिफरेंस क्या है फिर, अगर हम धर्म और सच को थोड़ा और समझने की ट्राई करें तो, जैसे आप बोल रहे हो कि सच नहीं, इट वाज धर्म के लिए, तो अगर मेरे लाइफ में मुझे धर्म को समझना है तो मैं क्या समझूं उसको? एक्चुअली हम लोग ऐसा देखें, जैसे प्रभुपाद जी कई बार एग्जांपल देते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो दो चोर से अपने प्राण बचा के, मतलब वो हथियार लेके उसके पीछे पड़े, एक ऋषि के आश्रम में छुपते हैं. तो वो दो चोर हैं वो आके पूछते हैं, मतलब वो जो डाकू हैं वो जो है वो व्यक्ति कहाँ गया, वो धनी कहाँ गया. तो यहाँ पे ही हैज ए चॉइस, आइदर टू से ट्रुथ कि नहीं यहाँ पे छुपा है, तो
या तो वो उसकी जान बचाए, धर्म का पालन करे कि अगर मैं इसको बता दूंगा तो ये उसको मार देंगे, he will lose his wealth, he will lose his life। तो वी हैव टू बी इंटेलिजेंट कि कहाँ मुझे सच बोलना है और कहाँ मुझे धर्म का पालन करना है। सो इसलिए मैं ये पॉइंट कह रहा था कि अदर देन ट्रुथ, अदर देन सत्य, वी हैव टू फॉलो धर्म। और हम लोग कोई पूरा भगवत गीता या इवन महाभारत देखें तो भगवान ने हर जगह पे जो था उनको मतलब थोड़ा टेढ़ा काम करके, जैसे जब जयद्रथ को भी मारना था तो जयद्रथ को वर्ण था कि वो कभी मतलब एक एक दिन था जब पांचों पांडवों को अकेला जो वो डिफीट नहीं लेकिन उनको रोक पाएगा, और वो सूर्यास्त तक करना था। और अर्जुन ने शपथ ले लिया था कि आज शाम तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो जो था मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो भगवान ने जानबूझ के वो अपना जो सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक दिया, सबको लगा रहे सूर्यास्त हो गया, तो जयद्रथ नाचते हुए आया, रे सूर्यास्त हो गया अर्जुन, अब तुम आत्महत्या कर लो। और तब भगवान ने सुदर्शन चक्र हटाया तो देखा रहे सूरज तभी भी है यहाँ पे। तो वी हैव सीन कि भगवान धर्म का पालन करने के लिए भले थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करनी पड़े उन्होंने किया, लेकिन धर्म का पालन किया, नॉट सच्चाई का। बिकॉज वी हैव टू बी इंटेलिजेंट एज जब धर्म का हम लोग पालन करते हैं तो सच कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे झूठ बोलना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और यही मतलब जब द्रोणाचार्य वाले केस में देखते हैं, द्रोणाचार्य जी को जब मारना था, बोले कि ये आज जो है हमको सबको हरा के छोड़ेंगे, आज ये अगर नहीं मारे गए तो हम लोग सबका नाश हो जाएगा पांडवों का। और इसीलिए वो झूठ बुलवाते हैं कि तुम बोलो कि अश्वत्थामा मर गया, एंड वो हल्के से इशारा करते हैं भीम को कि अश्वत्थामा मर गया, तो तुरंत भीम जो है वो समझ जाता है। तो उनके दल में, सैन्य दल में एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, वो जाके उसको जोर से गदा उसके सर पे मार के उसको मार देता। तो बोलता अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो खाली उनको बोलना था कि ये अश्वत्थामा, वो पूछते हैं नरो व कुंजरो, यानी हाथी है या नर है। तो वो धीरे से मतलब उनको बोलते हैं तुम झूठ बोल देना, क्योंकि तुम्हारे पे वर्ड पे ही ये सारा स्थित है, क्योंकि उनको पता है। पर मेरा धर्म क्या है? अगर मुझे धर्म के रास्ते पे चलना है, अगर मैं सच को सेपरेट कर दूं, जैसे आप बोल रहे हो कि धर्म का पालन करना है, तो आशीष का धर्म क्या है? मैं उसको कैसे समझूं? मैं उसको वेरी वेरी नाइस एंड वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन आशीष जी। आशीष का धर्म नहीं है, मतलब इट इज, धर्म जब आता है तो इट इज नॉट ओनली फॉर यू, नॉट ओनली फॉर मी, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर एवरीबडी। भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, मुझे एग्जैक्टली वो नंबर याद नहीं आ रहा, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी जो भगवान ने कहा है वही धर्म है। अगर भगवान कह रहे हैं तुम झूठ बोलो तो वो हमारे लिए धर्म है, लेकिन वहां पे अगर मैं अड़ जाऊं, नहीं मैं तो सत्यवादी हूँ युधिष्ठिर महाराज की तरह, मैं सत्यवादी, मैं कैसे झूठ बोलूं? नो। तो जो भगवान ने कहा है, भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस है, जो हमको भगवत गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, या जितने भी वेद पुराण हैं उनके माध्यम से हम लोग को मिला है, वी हैव टू फॉलो दैट। तो दैट इज धर्म ऑफ एक धर्म। अगर हम लोग अगर बाइफरकेट, प्रभु जी पाद जी का एक बुक है उसमें बहुत अच्छा, वो धर्म यानी इट इज नॉट अ हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या इस्लामिक धर्म या ऐसा, दैट इज नॉट धर्म, दैट इज जस्ट फेथ यू आर फॉलोइंग। असली धर्म यानी प्रभुपाद जी अगर उसको संस्कृत में देखें तो उसका धर्म यानी उसका रियल, मतलब वो वर्ड नहीं मिल रहा है, बट हिज रियल आइडेंटिटी। अब जैसे अगर शुगर, अगर देखें, शुगर का धर्म है स्वीटनेस। वो ऐसा नहीं है कि वो आज मीठा होता है, कल खट्टा होता है, फिर तीखा हो जाए, नहीं, ही इज नॉट चेंजिंग। आज हम लोग ऐसा है, मनुष्य आज कोई हिंदू है वो मुसलमान बन रहा है, मुस्लिम है वो क्रिश्चियन बन रहा है, क्रिश्चियन है वो बुद्ध बन रहा है, तो ये दिस कीप चेंजिंग, दिस इज नॉट धर्म, बट धर्म मीन्स हिज रियल ड्यूटी। तो शुगर का ड्यूटी जो है दैट इज स्वीटनेस। तो अगर उसका धर्म अगर चेंज हो जाता है तो दैट इज नॉट शुगर। तो वैसे ही हम जो जीवात्माएं हैं, वी आर नॉट ह्यूमन, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, ऑल द जीवात्मास, हमारा धर्म है भगवान का सेवा करना। और चैतन्य चरित्र में बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, यानी हम जो हैं भगवान के नित्य कृष्ण दास हैं हम लोग। तो हमारा सेवा जो है, हमारा जो धर्म है असली, सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा करना है।
It is not for one person, it is not for some sect, it is not for some population of some particular area, but for the whole humanity. Not only humanity, even pashu pakshi सब सभी जो हैं, it is for everybody. That is real dharma. I hope I am able to answer your doubt. हाँ थोड़ा थोड़ा, but I will try and do some more. Maybe I'll ask you separately. मुझे थोड़ा I'm still trying to, मतलब मेरा धर्म प्रभु की सेवा करना है. हर एक मनुष्य का धर्म प्रभु की सेवा करना है, right? Yeah. That is what आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला वही बोला कि प्रभु की सेवा करना है, और प्रभु जैसे बोल रहे हैं हमको वही करना है. अगर वो बोले झूठ बोल तो झूठ बोल, अगर वो बोले सच बोल तो सच. That is what dharma is all about. Yeah. Okay. और इसीलिए अगर हम लोग देखें, इवन पितामह भीष्म who was such a righteous person, उतने धर्म वाले व्यक्ति थे, उनके जैसा व्यक्ति भी जब अधर्म की तरफ खड़ा होता है तो even he gets killed. So this is what lessons we are getting from Mahabharata. We are getting lessons from Bhagavad Gita. Okay. Okay. Understood. Yeah. Hare Krishna. वैजी माता जी, पूजा माता जी, आज पूजा माता जी शांत है एकदम. Yeah, sorry, one by one. हाँ, या पूजा जी, या. नहीं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश ही कर रही थी. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं आशीष जी के, तो yes. लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और आंसर सुन के और भी अच्छा लगा. थैंक यू माता जी. या वैजी जी, हरे कृष्णा. Thank you. That explanation was excellent, and the difference between dharma and truth. I had a small question. It's about the number of days of the battle. You said it was 18 days. 18 I just days, wanted to know who was leading, because I think I got the last two. Karna was for the last 2-3 days. 2 days, right? 2 or 3 days. I just wanted the split, if you can. Yeah. See, initial 10 days it was Bhishma, Pitama Bhishma. Then 10th day he fall down. Then next 5 days it was Dronacharya. Okay. And after that 2 days it was Karna. Okay. And he was killed. And then last day it was Shailya. Yeah. Okay, Shailya. Okay, got it. Thank you, Prabhuji. Thank you, Hare Krishna. Krishna. Yeah, I think अगर और कोई क्वेश्चन कमेंट्स नहीं है तो we'll stop here. Yes, Hare Krishna. Vishaka Mataji, Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. It was very interesting. The question answer session is the most interesting part of your class. Thanks to Ashish Prabhu for his questions. And like Pooja ji was saying, it's nice to hear. Very nice to hear these explanations again and again. Difference between dharam and karam. So karam is action, Mataji. Yeah, but action is inaction if it's not according to dharam. That was the whole point that I understood. We may think कि हम सच बोल रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी अच्छाई, हमारा सच की जीरो वैल्यू है अगर वो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी डेफिनेशंस बनाते हैं और वो हमें ही सूट करती है, हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग. दैट इज व्हाई एक स्टैंडर्ड धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ अस, और हमें उसके साथ अलाइन करना है हमारा राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशंस. जस्ट टू गो इन डिटेल, अगर हम लोग थोड़ा सा और देखें कि जैसे आज हम लोगों ने अपना मनगढ़ंत धर्म बना लिया. कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई क्रिश्चियन हूँ, और हर कोई अपने अपने हिसाब से कह रहा है. तो आज के हिसाब से अगर देखें तो एवरीबडी, देयर इज नो यूनिटी. अगर हम लोग देखें, सभी लोग मानते हैं ऊपर वाला एक है, लेकिन वो बोलता है मुझे तो ये करने के लिए गया, और वो बोलता है नहीं मुझे तो वो और करने के लिए.
So there is no similarity in the instructions. Yes. बट जब हम लोग सही धर्म का पालन करेंगे, इंस्टेड ऑफ ये जो मन घड़त या स्पेकुलेटेड धर्मास हैं, जब राइट धर्म का पालन करेंगे तो देन देयर विल बी ऑलमोस्ट एवरीबडी विल बी अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, एवरीबडी विल बी फॉलोइंग द सेम इंस्ट्रक्शंस एंड देयर विल बी हार्मनी बिटवीन नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो बिटवीन एनिमल्स. तो आज जो इतना मांसाहार वगैरह हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो धर्म. ये मांसाहार की वजह से अधर्म और फैलता है एंड देयर इज सो मच ऑफ केओस इन द सोसाइटी. ये सुनामी, कोरोना, ये सब क्यों आते हैं? ऐसे ही सब ये अधर्म की वजह से ये सब होता है. तो पीपल में थिंक दे आर डूइंग धर्म. जैसे अगर सम सेक्ट ऑफ पीपल थिंक अगर हम लोग ये काफिरों को मारते हैं तो हम लोग को जन्नत मिलेंगी, हमको 7 होरें मिलेंगी, ये वो. So it's all speculated. They are not getting the right knowledge. Prabhuji, can I request you maybe whenever you have time, if you can share some reference material, on dharam, because which can probably help me understand little more. I don't want to read something and misinterpret कहीं और से कुछ पढ़ के मैं उसको अपना base बना दूं. So if you have time, whenever, no hurry. Yeah. I think जो अभी तक मैं जो धर्म समझने के लिए मैं जो बेस्ट 2 रेफरेंसेस यूज करता हूँ, one is श्रीमद् भगवद गीता एंड अदर इज श्रीमद् भागवतम. अगर आप इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, इट इज जस्ट पीपल में थिंक ये कुछ जस्ट एक लिटरेचर है, बट इट्स नॉट लिटरेचर. दिस आर डायरेक्ट एक जो है भगवान का दिया हुआ वचन है क्या करना चाहिए, दैट इज भगवद गीता. और भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भगवान के उनके भक्त हैं, तो वो अगर 2 चीजें अगर हम लोग पढ़ते हैं तो विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हाट इज धर्म, what is Lord, what he wants from us, what we are supposed to do. Everything is covered in there. Srimad Bhagavad Gita and Bhagavad, these are the best thing to understand dharma. So जैसे अगर हम लोग पहले देखें, अगर आप देखें, हाँ 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले कहाँ पे था? कुछ कोई बुक्स नहीं था. It was only one Sanatan Dharma, only Bhagavad Gita and only Srimad Bhagavatam. And people were following that and there was so much harmony, so much unity, so much of love and affection between. But आज जो है सब इतना bifurcated हो गए हैं, इतना अलग अलग हो गए हैं कि इवन जो मतलब फैमिलीज हैं वो एकदम छोटी छोटी होती है. जैसे पहले जो एक साथ में 4 भाई 10 भाई साथ में रहते थे, आज वो नहीं रहा वो यूनिटी. ओके. तो आपने क्या बोला? श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण ने क्या नहीं, उसमें क्या बोला है कृष्ण ने? क्यों करना है, नहीं क्या करना है, क्या करना है हम लोगों को, क्या करना है, और इंस्ट्रक्शंस, भगवान के इंस्ट्रक्शंस है, उपदेश है कि आप ये करो ये करो ये करो. श्रीमद् भागवतम इज द लीला. श्रीमद् भागवतम इज द लीला ऑफ भागवतम. या फर्स्ट टाइम्स कैसे उन्होंने किसी असुर को मारा, तो असुर को मारने के पीछे क्या कारण है, वो कृष्ण भगवान की लीला है क्या? नॉट ओनली कृष्ण बट भगवान रामचंद्र हैं, नरसिंह भगवान है, ऑल जो विष्णु तत्व हैं उनका ही है. अच्छा, ओके. जैसे अगर नरसिंह चतुर्दशी आई थी, तो नरसिंह चतुर्दशी पे भगवान नरसिंह देव क्यों आए? एक ही कारण था. प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ इस खंबे में भगवान है. बोले सब जगह पे? बोला हाँ सब जगह. बोले इस खंबे में भी? बोला हाँ खंबे में भी. तो वो दिखाने के लिए भगवान वहां से फाड़ के वो खंबे को फाड़ के आ गए. ओके. तो ऑल पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड एंड वी कैन अंडरस्टैंड द मूड ऑफ डिवोटी. एक भक्त का क्या लक्षण होना चाहिए, एक भक्त का क्या मूड होना चाहिए, वेरी नाइसली विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट. ओके, थैंक यू प्रभु. थैंक यू आशीष जी, थैंक यू. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. Very nicely explained, Prabhuji. Because the same thing I heard in one of the lecture that शास्त्रों में पहले से ही बताया गया हुआ है कि how we have to live our life. कैसे जीना है, क्या खाना है, कब खाना है, कब सोना है. लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में ना हमको सब कुछ इजी एंड शॉर्टकट चाहिए. तो इजी शॉर्टकट करने के चक्कर में उसको बहुत सारे ब्रांचेस आ गए. किसी को ये सूट करता है तो उसने वो कर लिया ऐसे. So it's very true. We should follow our shastras. Yeah. मुझे टर्म याद आ रहा है प्रभु, यूनिफॉर्म सिविल कोड.
हम सोच रहे हैं इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, Civil पूरी code. दुनिया को एक यूनिफॉर्म सिविल Yeah. कोड चाहिए, Yeah. एक जैसा रहन सहन खान पान। Yes. एंड भगवत गीता में सब दिया है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब दिया है भगवान ने, कैसे रहना है, कब सोना है, एवरीथिंग इज गिवन इन भगवत गीता। तो मतलब अगर वो नहीं मानेंगे तो हम धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। Exactly. Now you got it. Exactly. Now you got the point. Now you got it. एंड डेफिनेटली अगर ये धर्म का पालन करेंगे तो सत्य की राह अपने आप सामने आ जाएगी। Automatically. Essentially, yeah. या हम लोग आगे देखेंगे हम लोग वो कि एक्चुअली एक अमोघ लीला प्रभु आप लोग सब लोग ने सुना होगा, he gives very nice lecture, he is a very young boy, I think should be around 35 मेरे ख्याल से इसके आसपास होंगे, बट ही सच ए सुपर मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूट्यूब में उनके बहुत से लेक्चर हैं। तो वो बोले कि दो लोग होते हैं, एक तो जो है भगवान के भक्त होते हैं, ऑटोमेटिकली उनमें सब गुण आते हैं, जो प्रभुपाद जी भी हम लोग आगे कवर करेंगे उसको, कि श्रीमद् भागवतम का एक बहुत अच्छा वर्स है कि जो एक भगवान का भक्त है ऑटोमेटिकली उसमें सारे गुण आ ही जाते हैं, उसको मतलब स्पेशल प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे हम लोग प्रयास करते हैं, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो ही इज आर्टिफिशियली ट्राइंग टू बी अ गुड पर्सन। तो अमोघ लीला प्रभु बोलता है, डोंट ट्राई टू बी अ गुड पर्सन, यू ट्राई टू बी अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ गुड पर्सन। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एक अच्छा आदमी है वो भगवान का भक्त होगा। वो दिखाने के लिए दुनिया के सामने वो अच्छा आदमी हो सकता है, वो गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे वो क्या कर रहा है वी डोंट नो। बट भगवान का भक्त ऐसा नहीं, ही इज ऑटोमेटिकली ही इज हैविंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ नाइस पर्सन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड। Yeah. Thank you. I think 28 chapter text में भी वही लिखा है, one who has unflinching devotion for the personality of Godhead, has all the good qualities of the demigods. Nice, yes, same thing. So we'll quote that shloka also next time. What is that shloka? So I think Ashish ji is doing nice study, I think, Yes. of purports, so that I love that. And then on basis of that he's asking this wonderful questions. So thank you Ashish ji. मैं वही बोला प्रभु जी को आते ही थे कि मैं आपका 2 सेशन में आपका क्वेश्चन आंसर मिस कर दिया। Prabhu, were you able to open the recording? नहीं, अभी मैं लैपटॉप पे करता हूँ, मैं कल से बहुत बिजी था मैं, और सुबह भी एक क्लास था, एक मराठी होता है दोपहर को, सॉरी 10 बजे, वो भी मिस कर दिया मैंने। तो आप बताइएगा कि वो इज इट वर्किंग और नो। श्योर मैं अभी वो करता हूँ मैं, एंड उसको भी हम लोग अपना वो सीरीज में डाल देते हैं, सो एवरीबॉडी कैन बेनिफिट दैट, बहुत अच्छा रहेगा वो। एंड वी विल ट्राई टू डू, कुछ ना कुछ करते हैं उसके। वेयर कैन वी गो एंड सी ऑल दीस लेक्चर्स? वो जो मैंने लिंक शेयर किया है उसमें मैंने एक सेक्शन बनाया है कृष्ण कॉन्शियस ग्रुप करके, इन दैट ऑटोमेटिकली वी विल बी एबल टू, मेरा एक यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने शेयर किया है। Can we So, post all the this- link of the YouTube channel in our group description? So every time we can just go and click there and recap all the lectures. ओके वो करता हूँ मैं। लिंक अगर उसमें आ जाएगा तो हम बार-बार सुन सकते हैं ना एज अ रेफरेंस। या श्योर आई विल डू दैट। अब थैंक यू सो वो मच। पहले के 2 लेक्चर भी उसको ऐड कर देता हूँ, आज का भी लेक्चर ऐड कर देता हूँ, एनीबॉडी वांट्स टू अगेन गो थ्रू इट। एंड या आज जो नहीं थे, आज चार्मी माता जी नहीं है, आज करिश्मा जी नहीं है, हाँ, तो yeah. How many are there? I can't see. 5 लोग हैं हम लोग, आप, पूजा माता जी, हेमा माता जी, वैजी माता जी, आशीष जी। We'll try to pull them also. They are busy always, but yeah, somehow at least उनको बोले Yeah. We एक can घंटा हमें request दिया करो। Ashish ji to call चार्मी जी। चार्मी आपको लेकर आई, आप उनको लेकर आइए अब आशीष जी। उनको रिमाइंड करा दिया करो सैटरडे पे आ जाओ। Sure. ठीक है Thank चलो, you. थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. माता जी, थैंक यू हेमा जी, Thank you very much. वैजी माता जी, हरे कृष्णा, आशीष जी। Next week मिलेंगे। Thank you. Thank you. थैंक यू Thank हरे you, कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बड़े वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।